Hi friends, I am Praveen Bulke and I welcome you all on my YouTube channel. So आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन. So first हम देखेंगे what is meant by hyperbolic function. So suppose x be the real or complex number, then the hyperbolic sine of x and hyperbolic cosine of the x are given by this result. That is the sine hx equal to e to the power x minus e to the power minus x by 2 and cos hx equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2. Here we noted that the sign for sin hx is negative and the sign for cos hx is positive. Here the sign is negative and this sign is positive. Remaining all the terms are same. So sin hx, it is a hyperbolic function, hyperbolic sine of x, and it is written as a hyperbolic cosine of x. Now second, we have to build a relation between hyperbolic function and circular function. So actually circular function जो है वो आपने 11th या 12th में पढ़ा हुआ, sin theta, cos theta, sec theta, tan theta, it is called the circular function, and if you introduce h in that, it is called the hyperbolic function. So we know that formula for circular function, the sin x, the formula for sin x is e to the power ix minus e to the power minus ix by 2y. Now here we have to build the relation between hyperbolic function and circular function. And if you see the definition of hyperbolic function, so there is no I present in this function. So our aim is to eliminate this I. So how to eliminate the I? We know that I square is minus 1. So therefore we replace this x by ix. So if we replace this x by ix, then we get sin ix equal to e to the power I, x is replaced by ix, e to the power minus I, x is replaced by ix upon twice I. So I into I is I square is minus 1. I into I is I square is minus 1, minus is plus. If you take minus is common, then we get e to the power x minus e to the power minus x by 2. And 1 upon I can be written as minus I. 1 upon I can be written as minus I. The value of 1 upon I is equal to minus I. So this minus I and this minus 1 is plus I. So if you see, this is the result for sin hx. So we put the value of sin hx here. So first relation is sin of ix equal to I sin hx. ध्यान में कैसे रखना है आपको कि सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे हमारे पास फार्मूला मालूम था आपको कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाता, वैसे ही हाइपरबोलिक में आई जो है ना वो बाहर निकल जाएगा साइन फंक्शन अगर है तो. सिमिलरली वी टेक द सेकंड फंक्शन दैट इज द cos hx. cos hx के बारे में देखेंगे हम, तो cos के बारे में क्या होता है. सो इफ यू कंसिडर द अनदर फंक्शन दैट इज cos x, the formula for cos x is given by this result, e to the power ix plus e to the power minus ix by 2. Again we replace x by ix, so we get this result. Now I into I is I square is minus 1, I into I square is minus 1, and this is the result for e to the power x plus e to the power minus x by 2 equal to cos hx. So we put the value here cos hx. So cos ix equal to cos hx. Means hyperbolic function, means circular function is converted into hyperbolic function, but I is absorbed. I बाहर नहीं निकल गया. जैसे ही cos of minus theta क्या होता है, cos theta, तो minus sign is absorbed. तो यहाँ पे I भी क्या हो गया, वहां पे absorb हो गया. So फंक्शन क्या हुआ, हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली अगर हम tan देखेंगे तो tan मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. तो कॉस में तो कुछ होगा नहीं, तो नीचे तो कुछ होगा नहीं, ऊपर से साइन में से आई निकलेगा तो आई बाहर आ गया. कोसेक मतलब क्या होगा, 1 अपॉन साइन, तो साइन से आई बाहर निकलता है तो नीचे से आई बाहर आएगा, लेकिन टर्म ऊपर है तो 1 अपॉन आई इज माइनस है. सेक मतलब क्या होगा, 1 अपॉन कॉस. अभी कॉस में आई बाहर नहीं निकलता तो सेक में भी नहीं निकलेगा, तो एज इट इज रहेगा. इसका रिवर्स, कि अगर हाइपरबोलिक का हमको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर इज सेम. साइन एच एक्स आई एक्स हाइपरबोलिक है तो सर्कुलर में आ जाएगा, तो साइन है तो आर बाहर निकल जाता. कॉस है हाइपरबोलिक का तो सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में आई नहीं निकलता तो कॉस एक्स ही रहेगा.
tan है तो tan में I बाहर निकलेगा, सर्कुलर इज कन्वर्ट, हाइपरबोलिक इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर एंड वी राइट सो ऑन। मतलब दोनों रिजल्ट वाइस वर्सा आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ चेंज ये रहेगा कि अगर ओरिजिनल फंक्शन सर्कुलर है तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा, और ओरिजिनल अगर फंक्शन हाइपरबोलिक है तो वो सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये रिजल्ट आपको आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल होंगे। ये हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन और रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो व्हाट इज मीन बाय इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन? सो इफ sin hy इक्वल टू y, then x is called the hyperbolic sin inverse of y and it is denoted by x equal to sin h inverse y। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे x है, sin h को हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको sin h inverse of y। So therefore this x is called hyperbolic sin inverse of y। Similarly, if you find the value of cos hy, so we consider cos hy equal to y और x इक्वल टू होगा हमारा cos h इनवर्स ऑफ y, मीन्स x इज कॉल्ड द इनवर्स कोसाइन हाइपरबोलिक ऑफ y। तो इस टाइप में सिंपली हाइपरबोलिक में से इनवर्स हाइपरबोलिक अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे। अब हम इस टॉपिक पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैंने ये डायरेक्टली सॉल्व कर दिया क्योंकि इस एग्जाम्पल में बताने लायक कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम्पल इज गिवन बाय प्रूव दैट cos अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल रिलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो डायरेक्ट प्रूव कर दिया। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, अगर रिलेशन प्रूव करना है तो वी कंसिडर LHS, प्रूव दैट इक्वल टू RHS, और वी टेक RHS एंड प्रूव दैट इक्वल टू LHS। अभी इस रिलेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक पोलर फॉर्म होता है, तो ये कंसिडर करके हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक सॉलिड कंसिडर करेंगे। सो वी कंसिडर RHS। तो RHS is equal to e to the power minus beta cos alpha plus I sin alpha. Now we know that the Euler's result, that is e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta. So cos alpha plus I sin alpha can be written as e to the power I alpha. Now base is same, we can add the power, so we add the power here. Now we take I is common, I अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा आपको अल्फा माइनस 1 upon I बीटा। Now we know that the value of 1 upon I is minus I. So it is plus minus minus plus. And again, we reverse this formula. That is e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta. Therefore, e to the power I, this treat as theta. So cos theta plus I sin theta, which is equal to LHS. तो एकदम सिंपल रिलेशन है, कुछ सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम तो पूछेगा नहीं, लेकिन कभी अगर पूछा भी तो भी 3-4 मार्क के लिए आएगा। तो ये एकदम इजी प्रॉब्लम हो गया। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अब इसके बारे में लेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे हम इसमें से। So we take the first problem. Prove that tan h inverse x equal to 1 by 2 log of 1 plus x upon 1 minus x. So if you solve the problem of inverse hyperbolic, then first we have to convert as hyperbolic function because we don't have any formula for inverse hyperbolic function. हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक के लिए कोई रिजल्ट नहीं है, तो आप हाइपरबोलिक में उस पर पहले कन्वर्ट कर दो और बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हाइपरबोलिक में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए एकदम सिंपल है, लेट tan h इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, इधर की वैल्यू हमको निकालना है लेकिन हमें इसका आंसर भी मालूम नहीं है, तो हम इसको एक नया नंबर पुट करेंगे y। सपोज tan h इनवर्स इक्वल टू y and lastly we have to find the value of y and the value of y is given by 1 by 2 log 1 plus x upon 1 minus x. So we consider tan h inverse equal to y। और सभी तरह के प्रॉब्लम में आपको यही कंसीडर करना है, अगर इनवर्स का फंक्शन है तो उसको एक कोई फंक्शन ट्रीट करो और बाद में हमको वो दूसरे साइड में शिफ्ट करके हाइपरबोलिक फंक्शन कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा x। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर x? x इक्वल टू tan
एच वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू tan एच वाई। नाउ जो आपको प्रूव करना है वो टर्म हमको अभी कंसीडर करना है। तो लॉग बाद में रखेंगे, पहले हम लॉग के अंदर की टर्म जो है वो कंसीडर करेंगे। लॉग के अंदर की टर्म कौन सी है? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो कंसीडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दो, 1 प्लस tan एच वाई अपॉन 1 माइनस tan एच वाई। ठीक, इक्वल टू 1 plus tan hy can be written as sin hy upon cos hy upon 1 minus sin hy upon cos hy. If you cross multiply this term, we get cos hy plus sin hy upon cos hy माइनस साइन एच वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? cos एच वाई प्लस साइन एच वाई अपॉन cos एच वाई, cos एच वाई माइनस साइन एच वाई अपॉन cos एच वाई, cos एच वाई गेट कैंसल, तो वी गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट इज अगेन वी नो दैट द फार्मूला फॉर cos एच एक्स e to the power x plus e to the power minus 6 by 2, and the formula for sin h x is e to the power x minus e to the power minus 6 by 2 by definition. So here we use this result. So here y, so x is replaced by y. So cos hy is equal to e to the power y plus e to the power minus y by 2 plus e to the power y minus e to the power minus y by 2 upon again e to the power y plus e to the power minus y by 2 minus e to the power y minus e to the power minus y by 2, which is equal to, now this e to the power y by 2 plus e to the power y by 2 is 2 e to the power y by 2, matlab e to the power y, and e to the power minus y by 2, e to the power minus y by 2 get cancel upon, now e to the power y by 2 minus e to the power y by 2 is cancel, तो माइनस माइनस प्लस, तो e to the power minus y by 2 plus e to the power minus y by 2 is e to the power minus y. तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? e to the power y into e to the power y, which is equal to e to the power 2y. So what is the value for 2y? 2y means log of that term, log of 1 plus 6 upon 1 minus 6. Okay. So what is y? So this implies y equal to 1 by 2 log of 1 plus x upon 1 minus x, and the value of y is given by tan h inverse x, which is equal to tan h inverse of x. Hence proved. बस प्रूव हो गया। सिंपली हमने क्या किया कि पहले स्टेप में आपको यही करना है कि उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करना है, लेकिन वहां पे नंबर नहीं रहेगा, तो जो नंबर आपके पास नहीं है वो नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमने वो यूज किया। बाद में जो वैल्यूज आपको चाहिए उसमें से एक एक वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस लगा दिया, फिर ये फंक्शन लगा दिए, तो आपको मेरा e टू द पावर 2y, और e टू द पावर 2y मतलब दोनों साइड से क्या लिया हमने? लॉग लिया, तो ये मिल जाएगा आपको 2y इंटू लॉग ही मतलब 2y, और यहाँ पे आ गया लॉग, तो y की वैल्यू क्या होगी? 1/2, और y मतलब कितना है? tan इनवर्स, तो वी गेट द फाइनल आंसर। एक एग्जांपल तीसरा था, मैंने पहले ले लिया, हम और एक दो एग्जांपल इसमें से सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जांपल है, प्रूव दैट साइन h इनवर्स x इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम किया था वैसे हमको यही प्रॉब्लम करना है। तो हम क्या करेंगे? अगेन लेट साइन h इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पुट करना है हमको कुछ ना कुछ वैल्यू, तो इसको बोलेंगे हम y। सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू साइन h।
अभी जो हमको प्रूव करना है वो वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू कंसीडर करेंगे हम। सो कंसीडर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे पुट कर दो, साइन एच वाई प्लस अंडर रूट साइन एच स्क्वायर वाई प्लस 1। अभी एक रिजल्ट है यहाँ पर, आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती, 1। लेकिन अगर ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, कॉस एच स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो इसीलिए अगर हम इसको वहां पे रिप्लेस कर देंगे, उधर के साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एच स्क्वायर, और 1 प्लस साइन एच स्क्वायर कितना होगा, कॉस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा साइन एच वाई प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एच स्क्वायर वाई। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो साइन एच वाई प्लस कॉस एच वाई। और व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन एच वाई? द वैल्यू ऑफ साइन एच वाई इज, हमने इसके पहले प्रॉब्लम में भी हमने यूज किया है, साइन एच एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 6/2, और अगर कॉस है तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 6/2। तो साइन एच वाई इज गिवन बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 6/2, and cos hy is given by, sorry, here y, e to the power y plus e to the power minus y by 2. So here e to the power y by 2 plus e to the power y by 2 is 2 e to the power y by 2, and e to the power minus plus cancel, so we get e to the power y. So what is y? Y is equal to log of x plus under root of x square plus 1, and y की वैल्यू कितनी है, साइन एच इनवर्स एक्स। So we get the required answer. तो प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। सिर्फ पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, इसको अगर हमने उधर कन्वर्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। वैसे अभी टैन का प्रॉब्लम लिया हमने, कॉस का लिया, तो आप टैन लिया, साइन लिया, आप कॉस भी कर सकते हैं। कॉस में सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगे, कॉस -1 मतलब साइन, तो यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, तो मतलब यहाँ पे साइन एच वाई आया था, यहाँ पे कॉस एच वाई आया था, यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉस एच वाई साइन एच वाई आएगा। तो ये रिजल्ट तो पूरा सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, -1। तो इस प्रकार आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, और ये जो रिजल्ट है इसका आपको आगे जाकर कहीं पर यूज भी करना है, इसलिए ये प्रूफ तो आपको आना चाहिए, और ये रिलेशन आपको याद भी रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इस प्रकार इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे का जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।